Do you face any kind of skepticism or any kind of trust issues from the donors? डेली आते हैं तो Other ये तो डेली volunteers. आते हैं। आप एसी के कमरे में बैठे हो, ठीक है, और आप सोचो मैं यहाँ से 100 रुपया डोनेट कर दूं और वो किसी की लाइफ में चेंज लाते, वो नहीं लाएगा। The biggest myth about social work. पैसा खाते हैं जी, काला पैसा से वाइट करते हैं और अपने घर कोठी बना लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं ऐसा। और अगर मेरे पास BMW है तो क्या पता वो भी डोनर के पैसे से ली हो। Hi everyone. Welcome to the episode 6th of E Street Podcast, where stories meet strategies. I'm Mokshita, and today we're joined by a social entrepreneur who has a very strong background in business and marketing. Apart from that, he has not used his skills to earn profit rather than to serve a purpose. His organization redefines on how we look at the social problems. But he has a very simple belief कि change तभी आता है जब इंसान अपनी responsibility को समझे. So with that note, please welcome the managing director and the co-founder of the Ashray Foundation. So hi Shane. Yeah, hi Mokshita. So how are you by the way? I'm good. What Okay. about you? I'm doing great. So welcome to the show, and it's very I feel very pleasure to have you here finally. Same here. I'm glad that I'm giving this podcast to you. Alright. So please थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को about your background. आप कहाँ से आए हैं? So basically बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं है यार. I'm not a celebrity. I'm just a सेवादार in Ashray Foundation, right? Okay. So I started I don't started this, as you said that I'm a co-founder, right? And I'm the co-founder. My mother is the founder and chairperson of this foundation, right? And हमने ये 2012 से हमारा फाउंडेशन स्टार्ट किया था. The story is very emotional, I will say. I lost my father when I was in 5th standard, right? So वहाँ से एक स्टीरियोटाइप था हमारे समाज के अंदर कि फीमेल विडोज जो होती हैं दैट उनको घर के अंदर आने दिया जाता था या किसी काम के लिए नहीं उनको जो है आने दिया जाता था. तो व्हाट माय मदर डिड, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया where she developed a development center, like you can say a self-help groups, right, for the females जो widows हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल से. उनके पास आते थे with their sources and all, right? वो आते थे and accordingly वहाँ पे उनको जैसे जूट बैग्स मेकिंग हो गया, अचार मेकिंग हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो बनाते थे and मार्केट प्लेस के अंदर हम उनको सेल आउट करते हैं. Okay. Right? Marketplace, you know that Amazon, Flipkart are there, and that how we just keep the operational cost with us, and whatsoever amount is there, we give them a particular a good lifestyle. We have also a guest house over here, right near to back side of Chandigarh, Sukna Lake. अगर आपने बैक देखा हो वहीं पर हमारा एक गेस्ट हाउस भी है, तो वो लोग वहीं पर रहते हैं. बट मेरी मदर का बिलीव है कि उनको ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी. So that's a basic thing. I insisted her a lot many times. I have कि बहुत बोला कि मम्मा नहीं आपको करना चाहिए. But she is having that kind of thing कि नहीं, I don't want to show this on the social media, right? So हर किसी की एक अपनी mindset है, right? And I believe in 2017 I took an initiative to start this foundation by the name of Ashray Foundation. उनका जो मम्मा का फाउंडेशन का नाम है वो आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट है. हमारा आश्रय फाउंडेशन है, राइट? सो आई स्टार्टेड दिस विद 2 बच्चे थे हमारे पास जो मैंने स्टार्ट किया था. आई हैव डन माई 12th फ्रॉम YPS फ्रॉम यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल मोहाली, राइट? तो वहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं हमारे सामने ना लेयर वैली पार्क है हमारे स्कूल के सामने, बहुत फेमस पार्क है मोहाली का, लेयर वैली पार्क. वहाँ पे रोज़ एक बच्चा जो है पर्टिकुलरली जो है शूज़ कॉप करने आता था, राइट? अब हमारे जो स्कूल है, थोड़ा मैं स्कूल की बुराई नहीं करूँगा, अगर उन्होंने पॉडकास्ट देख लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा. ठीक है? तो बुली वाला एक बिहेवियर था जहाँ पे बच्चों को बुली करते थे या फिर कोई और, तो थोड़ा सा वो चीज़ था. मेरे दिमाग में एक दिन वो चीज़ दिख गई मुझे जब वो बच्चा था. तो मैंने उससे ऐसी बातचीत करनी शुरू कर ली कि व्हाट यू डू, क्या करते हो आप, कैसे करते हो, कहाँ रहते हो. सो ही सेड कि मैं पहले स्कूल में था. उसके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स उसके नहीं थे, वो अपने चाचू के यहाँ पे रहता था नियर टू 52 सेक्टर. वहाँ पे उस टाइम पे YPS के पास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उस टाइम पहले वहाँ पे एक स्लम एरिया भी होता था. अब वो इन्फोर्स हो गया बाय द चंडीगढ़ गवर्नमेंट. तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार इस बच्चे को एजुकेशन हमें देनी चाहिए. आई एम गेटिंग द एजुकेशन, इसके पास स्किल है, आज ये शूज़ कॉप करके अपना पैसा कमा रहा है, इसके दिमाग में तो होगा ना कि पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है?
तो वहाँ से सेगमेंट स्टार्ट हुआ, उसकी मैं इवनिंग क्लासेस लेता था. फ्रॉम देयर वी लॉन्च दिस इनिशिएटिव ऑफ इवनिंग स्कूल. वहाँ से मम्मा ने मेरा साथ दिया. मैंने उनको बोला घर जाके कि मैं 3 महीने से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग बिग राइट फॉर देम. कि ये तो 1-2 बच्चे हैं, वो अपने भाई को भी साथ ले आया था. तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये लोग 2 बच्चे यार मेरे पास हैं, इनकी झुकी झोंपड़ी में कितने ही बच्चे होंगे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर छोटी छोटी क्लासेस में, मतलब किसी ना किसी XYZ रीजन से एक छोटी सी चीज़ होती है, डेट ऑफ बर्थ, पीस ऑफ पेपर राइट, उसकी वजह से उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पा रही स्कूल के अंदर राइट. सो आई टुक एन इनिशिएटिव. आई जस्ट डन माई 12th. फर्स्ट ईयर में मैं आया कॉलेज के. मैंने स्टार्टिंग करी आश्रय से. अब स्टार्टिंग में आप जब कुछ करते हो तो इन्फ्लुएंस आपको होता है. मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था. आई डोंट हैव रिसोर्सेस. क्या करना है कैसे नहीं करना, बस एक सिंपल विजन था कि कुछ करना है राइट. एक बहुत सिंपल विजन था. आई कनेक्टेड विद माई फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स राइट. सो उन्होंने बोला ठीक है यार तेरी हेल्प हम भी करेंगे. ठीक है, यूथ है, आपको पता है यूथ. तो हमने फिर वहीं से 3-4 वॉलंटियर शुरू हुए. जब मैं अकेला था तो मेरे को 3 जगहों पे ट्रैवल करना पड़ता था एक ही दिन के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो उस टाइम पे मेरे पास आई गेस 25 बच्चे हो गए थे उस 2 साल के स्पैन पे. सॉरी. तो स्पैन एक टाइम चलता रहा. तो पर्टिकुलरली आज की डेट के अंदर वी आर हैविंग अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स who are studying with us, right? And we have 17 plus pathshalas in tier 1 cities. Obviously we are targeting tier 2 cities as well, but tier 1 में हमारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. as consider Delhi is the one, Mumbai is the one. पहले हमने एक बहुत छोटे से स्कोप से स्टार्ट किया था. मुझे 25-30 वॉलंटियर्स होते थे हमारे पास. देन उनके फिर आगे रेफरेंस बढ़ी, सोशल मीडिया पे आए हम, लोगों ने देखा कि ये सेवा कर रहे हैं. तो दैट हाउ वी स्टार्टेड दिस एजुकेशन वाला सेगमेंट विच इज़ नेम ऑफ पाठशाला राइट. सो अभी का जो इसका चीज़ है जो अभी चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी सरकार की तरफ से काफ़ी सारे स्लम एरियाज इन्फोर्समेंट में आ गए हैं. एंड यू एंड मी सिटिंग इन चंडीगढ़ पूरे इंडिया का सबसे पहला सिटी है जो स्लम फ्री हो गया है राइट. बट जो लोग हमने अपनी आंखों से जाते देखे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उनके घर JCB ने जो खत्म कर दिया. उनको नो डाउट टाइम दिया था गवर्नमेंट ने. आई विल नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट ओवर हियर. बट किसी का घर अगर जाता है तो उन्होंने काफी टाइम 25 साल से वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे. तो हर किसी को दिक्कत तो आएगी. कई लोगों को तो अलॉटमेंट भी नहीं हुई घरों की. ठीक है, तो उनको नियर बाई किसी किराए के घरों में रहना पड़ा. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड इनिशिएटिव ऑफ इवनिंग स्कूल, जहाँ पे हम एक प्रॉपर घर जो है वो रेंट पे लेते हैं. ठीक है, एंड उस रेंट जो है हमारे ऑलरेडी CSR डोनर से तरफ से हमें सपोर्ट होती है. तो वहीं पर हम इवनिंग स्कूल अपना स्टार्ट करते हैं. तो ये स्लम एरिया से उठा था हमारा आश्रय, और आज हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड जो इवनिंग स्कूल है वो डेवलप कर पाए हैं. सो दैट हाउ दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अस, आई विल से. और साथ ही साथ इसके और भी कैंपेन जुड़ते गए हमारे साथ. व्हेन आई हैव सी कि यार अब ये बच्चे तो आ रहे हैं बट कोई बच्चा पतला है वो BMI के अकॉर्डिंग ही नहीं है. उसको अच्छा एक हफ्ता आता था, दूसरे हफ्ते बीमार हो जाता था वो, जस्ट बिकॉज खाने को नहीं मिल रहा. माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हुई. देन वी कंडक्ट अ पर्टिकुलर सेशन राइट कि माल न्यूट्रिशन के लिए उनके पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसा है. देन वी स्टार्ट अ पर्टिकुलर मिड डे मील सिस्टम राइट फ्रॉम वेरी गुड सोर्सेज. कि अपने घर से ही मैंने स्टार्ट किया था. आई हैव डन डिप्लोमा इनटू कुकरी एंड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. उसके बाद ही मैंने किया था. तो मेरे को खुद से था, मेरे को दाल चावल बनाने आते थे. मैंने इन बच्चों के लिए वही बनाया. ठीक है, उनको पसंद आ गया. धीरे धीरे आई जस्ट मेरे को काम होता गया क्योंकि आई हैव टू ऑल्सो सी माई पर्सनल लाइफ एंड माई पर्सनल ग्रोथ. तो धीरे धीरे हमने कुक्स रखे. फिर अब हमारा जो है खाना डेली जो है पर्टिकुलरली PGI में लंगर लगता है हमारा. ठीक है, सुबह 11 बजे शुरू होता है लंगर हमारा और 3-4 बजे तक चलता है. अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हम चाय सेवा जो हमारी होती है वो भी हम डेली लगाते हैं. दिल्ली में हम भी हमारा एम्स हॉस्पिटल के पास चलता है. और मुंबई में हमारा टेस्ट के पास चलता है. सॉरी, टाटा जो मेमोरियल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हमारा चलता है. तो दैट हाउ धीरे धीरे हर एक की ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास. तो इनिशियली आपको क्या लगता है कि जैसे आई फील लाइक कि हमें एक NGO को हम एज अ चैरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है, सो टू रन इट यू नीड प्रॉपर फंडिंग, यू नीड टू गैदर वॉलंटियर्स. तो कुछ चैलेंजेस आए उससे रिलेटेड? चैलेंजेस आई विल से बहुत से चैलेंजेस थे. मुझे आज भी याद है आई स्टार्टेड डूइंग जॉब ऑन अ वेरी अर्ली एज, जहाँ पे लोग फन सेगमेंट कर रहे होते हैं. 18th की एज, मेरा 18 साल का मैं हुआ ही था
व्हेन आई जॉइंड अ कंपनी, ठीक है, बेसिकली द कंपनी इज लाइक BPO था बेसिकली एक, और मैंने मम्मा को बोल दिया था कि यार मम्मा मुझे, आई नो दैट माई मदर इज़ अ बैंकर बाय द वे, वी हैव अ पर्टिकुलर गुड लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था हमारे पास, Okay. था पैसा, वी वर मिडिल एक फैमिली की तरह हम सर्वाइव कर रहे थे। बट मेरे अंदर पता नहीं क्या एक आप चुल कह लो, ठीक है, या एक होता ना, एक प्रॉपरली आपको होता है कि यार विद इन से, मेरे को बचपन से था कि यार मुझे ना अपना कुछ करना है, राइट। सो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, 12th की छुट्टियां होती हैं, 3 महीने का वो जो गैप आता है ना, मैंने वहाँ पे BPO स्टार्ट किया, मैंने 1 साल जॉब करी वहाँ पे, आई गॉट टू लॉट ऑफ थिंग्स। अब BPO के अंदर मैं था उसके अंदर, आई विल से क्या बोलते हैं, नंबर पोर्टिंग करने में, जो नंबर आपका पोर्ट होता है ना उसमें Okay. था। अब उसमें गाली तो बहुत लोग निकालते हैं, तुम्हारा सिस्टम नहीं चल रहा, तुम्हारा नेटवर्क नहीं चल रहा। वहाँ से मैंने एक चीज़ रियलाइज करी, दैट हाउ टू डू अ कम्युनिकेशन, हाउ टू हैव पेशेंस, क्योंकि जब आपको सामने वाला गाली निकाल रहा है और आप चुप करके, आपका मन कर रहा है गाली निकालने का बट आप आप निकाल नहीं नहीं पा सकते, रहे हो। ठीक है। तो वहाँ से मुझे पेशेंस आया हम्म। थोड़ी थोड़ी। उस टाइम पे इतना आई विल से कि हमें नहीं ज़रूरत पड़ती थी फंड्स की जो हमें आज पड़ती है। तो वहाँ पे मैं अपनी, मेरी सैलरी होती थी आई विल से 10K, उस टाइम पे कट आके मुझे 9,000 समथिंग आता था। तो वहाँ से मैंने 2-3 हज़ार रुपये अपनी बुक्स से उनको देने, मेरी जो खुद की रेफ नोट बुक्स होती थी, मैं उनके पेजेस निकालता था, उनकी एक बुक बना के दे देता था उनको, राइट। कुछ कई कई चीज़ें तो मैंने अपने स्टडी रूम से उन बच्चों को दी हैं। तो धीरे धीरे जब स्टार्ट हुआ तो आई हैव डन माई MBA फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। वहाँ से मेरा एलुमनाई स्ट्रांग हो गया, हमें पता लगा कि CSR क्या होता है, राइट। देन हमारे पास पब्लिक फंडिंग आती थी, नो डाउट। चंडीगढ़ के अंदर बहुत से लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, राइट। बहुत से ब्रांड इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है यहाँ पे। बट आई विल से कि वहाँ पे एक होता है ना कि आपको, यू आर ऑल्सो लाइक अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, राइट, या यू नीड सम अमाउंट टू सर्वाइव योर इंटायर मंथ, राइट। वो हमारे लिए भी था कि हमें अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट रोज निकालनी है, वो निकल नहीं पा रही थी। दैट हाउ आई स्टार्टेड CSR को पिच करना, राइट। अब CSR के पिच करता था मैं, कोई किसी का एडमिन देखता था, किसी का कुछ मिलता नहीं था। फिर मैंने अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग किया, लिंक्डइन पे मैं मैसेज डालते रहता था। मैं, मेरी फॉलोअप गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम कमिंग फ्रॉम अ सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड। तो मैं, जब तक बंदा मुझे जवाब देता है मैं उसको पर्टिकुलरली चेस करता रहता हूँ, राइट। मैंने फॉलोअप किए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 1 पर्सन रिप्लाइड, टाटा कम्युनिकेशन का CSR हेड थे, दे रिप्लाइड। एंड मैं मीटिंग करने गया उनके साथ गुड़गांव में, हमारा पहला CSR उनके साथ चला। देन धीरे जब चीज़ें चलती गई, यू विल बी लाफ एट मी, अभी इसी साल हमने 2 महीने ही पहले वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर वी आर ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय फॉर अ CSR मैनेजर के रोल पे हम कर रहे हैं। तब से लेकर अभी तक मैं ही करता आ रहा हूँ CSR सब, कोई और टीम नहीं है हमारी कोई जिसमें CSR देखता हो या कुछ करता हो, नहीं। आई एम द ओनली पर्सन जो CSR को पिच भी कर रहा है, उनको हैंडल भी कर रहा है, फाइनेंस वाला भी वही कर रहा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। We do have a finance and accounting team. Now we have developed from past 2 months CSR की प्रॉपर टीम है हमारी, जो लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई MSW कैसे चलता है, मास्टर सोशल वर्क कैसे चलता है, उन लोगों को ज़्यादा पता है, ऑपरेशनल है। तो धीरे Amazon हमारा जो है CSR बना, EY बना, राइट। EY के बाद HDFC बैंक इज देयर, ICICI बैंक इज देयर, बिग। मेरा मिशन ये बन गया था कि मुझे अब पब्लिक फंडिंग पे जो है फोकस नहीं करना है, नहीं करना है पब्लिक फंडिंग पे फोकस। मुझे सिर्फ फोकस करना है CSR पे। क्यों CSR पे मैंने इसलिए फोकस किया, एक CSR को हर क्वार्टर में एक अमाउंट दे रहा है जो मेरे बच्चों के लिए, मेरे और इनिशिएटिव्स के लिए यूज़ हो रही है। कुछ में क्या होता है, जैसे आपके ऑफिस के सामने इन्फोसिस है, ये भी हमारा CSR है, इनका एवरी मंथ आता है कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कुछ ये करते रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो वहाँ से हमें प्रॉब्लम फंड्स की आना बंद हो गई। ओके। मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि पब्लिक फंडिंग के लिए मुझे गूगल पे एड्स रन करने पड़ रहे हैं, मुझे मेटा पे एड्स रन करने पड़ रहे हैं, मेरी जो ROI है वो कम है, मेरी स्पेंडिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आप एक जब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो तो आपको पता लगता है कि कितना ROI आ रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, मैं सिर्फ एक सर्विस ही दे रहा था। चैरिटी के नाम पे लोग क्या करते हैं कि
they are always in a question mark that this will go towards the beneficiary or not. Either entire NGOs की तो अपने पास नहीं रख लेते पैसा, and there are some NGOs who do this, but मैं ये कहता हूँ कि हम no doubt I also keep my admin cost with me, right? We also take operational cost हमारे पास रहती है, but from the past 13 years now आश्रय के अंदर ना ही मेरी मम्मा ने अपनी कोई सैलरी विड्रॉ करी, ना ही मैंने सैलरी विड्रॉ करी, just because we are working. हम ऐसे काम कर रहे हैं कि हमें सेल्फलेस होकर काम करना है, राइट? कि हम अपने ऊपर नहीं है कि हमें कुछ बेनिफिट हो कि जी मैं इससे ये चीज़ ले लूँ, नहीं, हमें है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को मिले, जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिले, दैट्स ऑल वी वांट. तो आपके जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका भी ये सेम माइंडसेट है? ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल से. देखो, मेरे पास चंडीगढ़ से ही मैं ग्रो हुआ हूँ, राइट? चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई. वी हैव बीन सीइंग लॉट मेनी थिंग्स. हर एक वॉलंटियर का अपना एक वे आउट है. हमारे पास मेंबरशिप फीस होती थी 700 की, जिसमें से हम बच्चों को टी शर्ट्स देते थे और एक कैप देते थे. जब मैं दिल्ली गया, वहाँ पे वो कहते हम ये मेंबरशिप फीस ही नहीं पे करेंगे, ठीक है? तो उनसे पूछा कि सर नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में बच्चे का रहना, डीयू में पढ़ना सस्ता काम नहीं है. फिर मैं समझ में आने लगा कि इसको थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, इनको कॉस्ट थोड़ा निकालना बंद करो, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म तो चाहिए. जब एक वॉलंटियर जा रहा है तो वहाँ पे हमें चाहिए यूनिफॉर्म. बट धीरे धीरे धीरे, पहले तो हम इंटरव्यू भी नहीं लेते थे किसी वॉलंटियर का. जब वो आता था, जस्ट आपने बोला मेरा फ्रेंड है यार, ग्रुप में ज्वाइन कराएगा, उसका मन है तो आएगा, नहीं आए. बट मैंने वहाँ से देखा कि यार इन लोगों ने, अब अगर हमारे पास 100 वॉलंटियर है ना ग्रुप में, यू कांट इवन इमेजिन मकसद, वहाँ पे सिर्फ 20 वॉलंटियर एक्टिव हो गए, ठीक है? फिर मुझे सिस्टम समझ में आने लगा कि यार ये सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं. 3 तरीके के वॉलंटियर आते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा सच हो जाएगा और जो एनजीओस वाले मुझे देख रहे होंगे उसको रिलेट कर पाएंगे. 3 टाइप के वॉलंटियर आते हैं. एक जो जेन्युइनली काम करना चाहता है, दूसरा वो आता है जिसको सिर्फ सर्टिफिकेट पर्पस चाहिए कि मेरे को मेरा सीवी चमकाना है, दैट्स ऑल. थर्ड आता है, लड़कियां आती हैं लड़कों के लिए, लड़के आते हैं लड़कियों के लिए, यूथ. दिस इज अ वेरी ब्लड टू से, बट ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, राइट? सो अब होता क्या है कि सर्टिफिकेट तो हम दे रहे थे, सपोज यू आर माई वॉलंटियर, राइट? यू हैव बिन वर्किंग विद मी फ्रॉम पास्ट 1 year, राइट? अब मैं आपको इवेल्युएट कैसे करूंगा? पहले बिना इवेल्युएशन के हम सर्टिफिकेट देते थे. वो कह रहा है मैं तो आया था यार, मैं तो ग्रुप में नाम डाला था, ये करा था, वो करा था. इसका पिछले 1 साल से हमने मॉडल निकाला. जो हमारी वॉलंटियरिंग एंगेजमेंट टीम है, उन्होंने बोला कि सर इसका एक हमें इवेल्युएशन सिस्टम रखना चाहिए. अब मुझे तो इतना, मैंने कहा कैसे रखोगे तुम इवेल्युएशन सिस्टम, कॉर्पोरेट तो है नहीं ये, ठीक है? तो वो कहे, उन्होंने बताया कि आप एक पॉइंट सिस्टम रखना शुरू कर दो, ठीक है? सो नाउ वी हैव अ virtual point, VP points, victory point and a default point. So let's say मुक्षता आज हमारी ये पाठशाला में आई, उसने अपना पूरा टाइम वॉलंटियरिंग में दिया, she will get 2 VP points for coming at पाठशाला, right? Entirely चंडीगढ़ टीम में अगर आपको रहना तो आपको 8 VP point चाहिए to take the certificate for 3 months. Every month आपके 30 points होते हैं. जैसे एक 8 पॉइंट आपके VP के हो गए, जो आपका विक्ट्री पॉइंट है. अगर उसमें आपको सोशल मीडिया पे आप रील्स शेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोलैबोरेशन लेके आ रहे हो, कोई इवेंट भी टेक केयर कर रहे हो, तो यू विल गेट 30 में से 25 आपका होना है मैंडेटरी. अगर 25 नीचे जाते हो तो यू विल गेट अ 0 टॉलरेंस पॉलिसी फ्रॉम अस 15 days. फिर हम वॉलंटियर्स को निकालना भी शुरू कर देते हैं. सो ये इवैल्यूएशन सिस्टम समझ में आया हमें, क्योंकि हम अब जो सर्टिफिकेट हम देते हैं वो इवैल्यूएशन सिस्टम पे देते हैं. तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार मैंने तो काम किया था बट मेरा काम हुआ नहीं है, ऐसे है. तो बहुत सी चीज़ें अभी भी, व्हेन आई विजिट सम एनजीओज आउट देयर, आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. और यू विल आई जस्ट वांट टू टेल माय एक्सपीरियंस. व्हेन आई वाज बिल्डिंग दिस एंटायर फाउंडेशन, आई वाज वॉलंटियरिंग विद 30 एनजीओज आउट देयर, along with 30 NGOs. And if you will ask me why? Just because जो उनका जो लूप था, मतलब जो उनके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स थे, जो लोग वो गलत कर रहे थे, मुझे वो आश्रय के अंदर नहीं करना था. अगर कोई एनजीओ गलत कर रहा है, सपोज हर एक कंपनी, कॉम्पिटिटर कैसे, आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे होता है? जब आप दूसरे वाले को देखो ये गलती कहाँ पे कर रहा है. मैंने वही किया, 30 से 40 एनजीओ का वॉलंटियर किया, देखा कि ये गलत कहाँ पे कर रहे हैं, वो मेरे को आश्रय में नहीं करना.
तो जो हमारे वॉलंटियर्स के इंटरव्यूज होते हैं, राइट, मुख्यतः वी टेक केयर ऑफ वॉलंटियर्स की वो प्रॉपरली इंटरव्यूज हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी वॉलंटियर है वो ओपन हो गया, वी हैव अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन कॉल, उसके बाद वॉलंटियर गेट सेलेक्टेड एंड वी particularly engage them. And for me, I will say volunteers are not volunteers for me. I always say they are a family, and we have a particular Gen Z staff as well, ठीक है, जो थोड़ा सा मुझे उनसे वर्ड्स पता अभी लगना शुरू हुए धीरे धीरे, क्योंकि मुझे नहीं इतना पता था। आई एम 98 बॉर्न, राइट, सो दैट हाउ पर्टिकुलरली, क्योंकि अब हम वॉलंटियर को एक लीडरशिप भी देते हैं। once they are working with us, they get to know about entire organization that क्या है क्या नहीं है। हमारी टीम में से हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, राइट, कॉपी राइटिंग हमारी टीम से कर रहे हैं, राइट, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी टीम में से HR के ऊपर भी काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड विद अस, सो दैट हाउ इट्स ऑल अबाउट द वॉलंटियरिंग। So it's more like a business environment only from the inside. इनसाइड आई विल नॉट से द बिजनेस एनवायरनमेंट, बट होता क्या है ना कि जब एक पर्टिकुलर कोई इंसान आपको देखेगा बाहर से, हमारे पास जब CSR आता है, राइट, उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहिए कि यार सिस्टमैटिक है हर चीज़, राइट, कि अगर शेन इज द को फाउंडर, ओनली नॉट शेन इज वर्किंग, इसके पास एक टीम है, फाइनेंस की टीम अलग है, ये टीम सोशल मीडिया की अलग है, ये टीम अलग है, क्योंकि जब फिर वो CSR भी को पता लगा ना कि हाँ यार, क्योंकि वो देखो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हर कोई आ रहा है CSR, उसको सामने वाला बंदा वैसे चाहिए होगा कि वो उसके साथ वैसे ही काम करे। अब वो पहले स्टार्टिंग में होता था, वो बोलते थे जी इनवॉइस रेस कर दो, मैं बेचारा एक्सेल पे बैठ के इनवॉइस बनाता था। आज हमारे पास ज़ोहो बुक्स आया है कि हमने ज़ोहो बुक्स यूज़ करनी शुरू करी है पिछले 1-1.5 साल से आईपीएल से, वरना तब से लेकर मैं मैन्युअली कभी वर्ड पे रिसिप्ट काटते थे हम, कभी ऐसे, क्योंकि हमारे पास इतने टूल्स नहीं थे। बट नाउ विद टाइम व्हेन वी गॉट टू नो कि हमारे सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, हम कैसे उसको और अच्छे से दे सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है आने के टाइम पे। और फिर ऑटोमेटिकली बिजनेस वाले छोटे से, मतलब आई विल नॉट से कि बिजनेस कंसेप्ट, एक छोटे उस कॉर्पोरेट के लेवल पे हमें आना पड़ता है to streamline all the things whatsoever we are doing. So how do you market yourself? How do you handle this marketing, storytelling and branding part? I will say मेरी एक शुरू से particularly you can say thinking रही है, right? My team always chase me up that sir you should be the face for your foundation. But while studying in ISB, I was the one, जो ये ब्रांडिंग वाला पार्ट आता है ना, वो चीज़ मैंने बहुत ध्यान से समझ ली थी। और मैंने एक चीज़ समझी थी कि हर किसी को, अगर आपको कोक पीने है, आपको कोका कोला पता है कि आपको पी रहे हो, बट नो वन नोज द फाउंडर ऑफ द कोका कोला, राइट? सो दैट हाउ आई शिफ्टेड माई मेंटलिटी कि एवरीवन शुड नो आश्रय फाउंडेशन, शेन कौन है या अमन बख्शी कौन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, right? Yeah. Nowadays I have seen a trend that where NGOs, I will say, or a corporate, they are just bringing up their face values, personal branding. Yeah, personal branding. But I will say चलती है, थोड़ा बहुत आप रखो, क्योंकि देखो विद टाइम के साथ हमें बदलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो हम 90s में करते थे आज वो दोबारा से हम 20s में करेंगे, वो नहीं हो सकता, राइट? बट यहाँ पे उस चीज़ को स्टैंडर्ड कैसे रखना है, वो चीज़ हम बहुत, मतलब मैं कभी फेस नहीं आता। आई ऑलवेज चेज अप माई वॉलंटियर्स। माई बेस्ट फ्रेंड इज देयर यतिन हु टेक्स केयर ऑफ आवर एंटायर सोशल मीडिया, राइट? तो वो मेरा, मतलब आप ये कह लो कि मेरा सगा भाई नहीं है, बट ऐसा है कि खून का रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, बट ऐसा है कि वो मेरा राइट हैंड है, ठीक है? तो मेरे साथ सारे काम उसने देखे हुए हैं, HR देखा है उसने, फंड रेजिंग देखा है, हर एक चीज़ देखी हुई है, तो ही नोज दैट व्हाट आर पेज वांट्स, व्हाट आर ऑडियंस वांट, राइट? बाकी जो कंटेंट क्रिएशन आप लोगों ने बोली है, वी आर गुड इन, आई डू एग्री। और अगर कोई मुझे बोले कि इसको बड़ा गुरूर है इसके ऊपर, यस वी हैव। मेरे और यतिन के ही दिमाग से सारे कंटेंट क्रिएशन चाहते हैं, ठीक है? अभी आप देखो काफ़ी रील्स हमारी वायरल भी हैं, राइट? कि स्पाइडरमैन बने, फिर बच्चों को कुछ दिया, है ना? तो दैट इज कंटेंट क्रिएशन। व्हाट आई फील लाइक कि आप ब्रांड को ब्रांड तब बना सकते हो जब आप लोगों को बताओगे कि भाई तुम लोग हो क्या, राइट? ऑन व्हाट पर्पस यू आर वर्किंग। इफ आई विल टेक अ रैंडम क्लिप्स, अ रॉ क्लिप्स, मैं उनको जोड़ दूं, कोई स्टोरी लाइन ना दूं, ऊपर से डाल दूं फूड डोनेशन ड्राइव चंडीगढ़, राइट? समझ नहीं आएगा कितना बांटा, क्या बांटा। Nowadays people are like this,
People are not looking at the caption, that what the caption it is, and that's the reason हमने caption छोटी रखनी शुरू कर दी है. हम सिर्फ एक CTA डालते हैं, कहीं में तो caption डालते भी नहीं है. Right? So that how I take हमारी in-house branding रही है शुरू से. No doubt we have some good agencies जो हमारे साथ काम करती थी, but अभी के लिए for now we don't have any agency working with us. We are looking for, but अभी ऐसी कोई agency नहीं. Do you face any kind of skepticism or any kind of trust issues from the donors? डेली आते हैं तो Other volunteers. ये तो डेली आते हैं. Online. डेली आते हैं, ये डेली आते हैं. और अगर वी आर पार्टनर्ड एनजीओ विद पीटा इंडिया, राइट. अब पीटा इंडिया क्या, मेरी कोई भी पोस्ट देख लेना, अगर मैंने बकरा ईद पे करी है वो, तो इतने सारे कम्युनिटी के इश्यूज आ जाएंगे कि तुम लोग तब कहाँ जाते हो, ये कहाँ करते हो, वैसे कहाँ करते हो. अगर हमने कुछ डाला है कि चिकन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दैट इज पीटा इंडिया इज ऑल अबाउट द वेगनिज्म, राइट. सो उनका है कि उस चीज़ पे फोकस करना है, तो हमारे को बहुत बैकलैश आ जाता है. एक बैकलैश मुझे और भी आता है कि बीइंग कमिंग फ्रॉम अ सिख बैकग्राउंड फैमिली, राइट, और वी आर पंजाबी ब्राह्मण्स बेसिकली, सो कमिंग फ्रॉम अ सिख बैकग्राउंड, व्हाई यू आर प्रमोटिंग मुस्लिम, राइट, जस्ट बिकॉज वी डू इफ्तिहारी टाइम पे हम, क्योंकि मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आई गॉट अ रैंडम मेल्स एज वेल दैट आई ऑन माई इंस्टाग्राम आई गेट सो मच हेट. पीपल आर लाइक कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सिख हो के इसके लिए काम कर रहे हो, मुस्लिम के लिए काम कर रहे हो, या जो है क्रिश्चियंस के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें अपने धर्म में काम करना चाहिए. तो मेरा एक ही रिप्लाई होता है, वैसे मैं रिप्लाई देता नहीं हूँ मैं. क्योंकि देखो, जितना आप किसी कीचड़ के अंदर जाओगे ना, उतना ही छींटा आपके ऊपर आएगा, उतना ही मैले आप होते जाओगे. तो अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए आई ऑलवेज से दिस, like through my podcast, whenever I go to school and colleges, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि इंसान जो भगवान है ना, उसने इंसान बनाया था, उसने कोई ये सरनेम्स, कोई कम्युनिटीज़ नहीं बनाई थी, ठीक है. तो जब एक इंसान के काम आ सकता है, तो वो ये देख के नहीं आएगा काम की कम्युनिटी है. यू गो टू एनी रेस्टोरेंट आउट देयर, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट वो खाना मुस्लिम ने बनाया, हिंदू ने बनाया, या फिर किसी क्रिश्चियन ने बनाया, राइट. तो जब वहां पे आप देख के नहीं खा रहे, आप फिर इस चीज के ऊपर कैसे कर सकते हो. जब हमने बात ही यही कह दी कि सब पर्टिकुलर कि सब एक ही हैं, राइट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो व्हाई वी आर लाइक जस्टिफाइंग आवरसेल्व्स कि भाई नहीं, इसको नहीं देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए. अभी रिसेंटली आई विल से, जब पंजाब फ्लड का टाइम आया था, आई वॉज, माई एंटायर टीम, आई इवन माई सेल्फ वॉज ऑन द फील्ड. वहाँ पे किसी ने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम घर से आ रहा है, ये तो इस बैकवर्ड एरिया से है या बैकवर्ड क्लास से है. नहीं, ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट पूरी करी, एंड डन. ये चीज़ है. अच्छा, पंजाब फ्लड पे अगर आप आ चुके हो, तो किस तरह के चैलेंजेस आए थे उस टाइम पर? Because I have seen कि बहुत बुरा हाल था. I have seen lot of challenges, I will say. सबसे बड़ी बात तो इतना पानी था, मतलब I am 5'7", 5'7", 5'8", मेरे कमर तक पानी था, राइट, जब हम गए हैं वहाँ पे. फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं. एंड उसके बाद वी हैव सीन, मतलब ये आपने बहुत से पॉडकास्ट में देखा होगा, ये सारे सेलिब्रिटीज ने भी बोला है, ये चीज़ पंजाब के अंदर है. और बीइंग अ पंजाबी आई कैन ऑल्सो टेल यू, उनके घर बह रहे हैं, ठीक है, वो फिर भी हमें पानी पूछने आ रहे हैं कि भाई तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें चाय चाहिए है, तुम साढ़े घर रोटी खा के जाओ, ठीक है. तो ये चीज़ पर्टिकुलर पंजाब के अंदर ही है. आई हैव बीन वर्किंग विद, अभी जब लास्ट ईयर केरला में आया था, तब हम वायनाड में गए थे, राइट. वहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट क्रिटिसिज्म एनी स्टेट और एनी अदर, बट पंजाब के अंदर ये चीज़ हमने शुरू से देखी है कि जब गिर जाता है ना, खुद अपने आप को उठा लेता है. और बीइंग अ पंजाबी, I can also relate this particular thing within my personal life as well, that अगर मैं किसी चीज़ में नाकामयाब हुआ हूँ ना, मैंने उससे सीखा है और मैं दोबारा से कामयाब हूँ, मेरा एक गिव बैक हुआ है. तो ये जो नेवर क्विट वाली मेंटलिटी है ना, ये जीन्स में है सिख के और पंजाबी के, कि क्विट नहीं करना. सिचुएशन जो मर्जी हो, बुरी से बुरी हो, अगर आप क्विट कर गए, यू विल लूज द बैटल. एनी हाउ यू हैव टू विन द बैटल. तो आपने कैसे हेल्प आउट किया था जो सर्वाइवर्स थे? सी, हमारा बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम था. पहले तो आई विल से कि लोग एकदम से, चलो जिन लोगों को नीड थी स्टार्टिंग डेज में तो आ गए. अब जहाँ पे जब पानी थोड़ा थोड़ा रिसीड होने लगा,
तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घर में ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, राशन पानी पड़ा हुआ है, बट वो अगेन हमारे ट्रॉलियों के ऊपर आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, राइट। तो मैंने टीम को बोला यार ऐसे तो नहीं दे पाएंगे हम लोग, हमें तो सेवा बहुत लार्ज स्केल पे करनी है। लोगों के बेड चले गए, लोगों के वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर तक चले गए, कुछ भी नहीं था बचा था, मतलब उनके घर के यहाँ तक पानी था, मतलब दीवारों तक पानी था जहाँ पे गया है, राइट। एक तो मैंने ऐसी किचन देखी है जो फ्लोट कर रही थी किचन, उनकी बर्तन उसके ऊपर थे, राइट। सो हमने कूपन सिस्टम बनाया। हम क्या करते थे, सुबह 8 बजे हमारी टीम निकलती थी, 8 बजे निकलती थी, हम 8 बजे से लेकर 1 बजे तक सर्वे करते थे हर एक एक विलेज का जाके, ठीक है। उसके बाद हमें पता लग जाता था कि इस विलेज में ये प्रॉब्लम है, खुद देख के कि अगर ये बंदा फ्रिज मांग रहा है तो घर में फ्रिज है, और अगर है तो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, राइट। तो दैट हाउ हमने उनको कूपन देना। फिर हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव स्टार्ट होती थी, वहाँ के लोगों ने हमारी बहुत सपोर्ट किया है, विल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है। अगर कोई वहाँ पे किसी का गोडाउन है तो उसने हमें अपना पूरा गोडाउन दे दिया कि आप यहाँ पे सामान रख लो, विदाउट एनी सिंगल पे चार्जिंग एनी पेनी, 1 रुपया नहीं मैंने किसी को वहाँ पे दिया, राइट। किसी का बैंक्वेट हॉल है तो उसने मुझे बोला सर वैसे कौन सा शादियाँ आ रही हैं, हमारा बैंक्वेट हॉल यूज़ कर लो, राइट। सो हमने वहाँ पे प्रॉपर देखा कि किसको क्या क्या चाहिए। फिर जो हमारी 3 से 6 बजे तक की ड्राइव होती थी, उस पर हम उन लोगों को बेनिफिशियरीज को बुलाते थे, नंबर वाइज कूपन होते थे, तो 1 से 20 से ऐसे। तो वी हैव टाइप विद द सरपंच जी, वहाँ से हमें देखा, और हमने मतलब आई विल से मैं यहाँ तक भी एरियाज में चला गया हूँ वेयर आई कैन क्लियरली सी द LOC, जो हमारी पूरी लाइन है करतारपुर जो कोऑर्डिनेटर पड़ता है हमारे यहाँ पे, लास्ट वहाँ पे जो गाँव है वहाँ तक हो गया है, राइट। रावी नदी से पार होके आपको जाना था, लास्ट गांव था, ठीक है। उसका आगे सारा पाकिस्तान के एरिया में दिख रहा था, अपनी आंखों से देखा हमने, पाकिस्तान के यहाँ दिख रहा है, लाइन थी सिर्फ वहाँ पे, तो वहां तक हम हेल्प करके आए हैं। तो यही था कि हमने एक सिस्टम बनाया कि उसके हिसाब से वी हैव गिवन रेफ्रिजरेटर्स, वी हैव गिवन इवन बेड्स टू देम, राइट। इवन अभी ऑन दिस दिवाली मेरे को लगा है, मैंने कहा यार हम तो दिवाली बना लेंगे, राइट, बट व्हाट दीस पीपल विल डू। मैं अपनी घर की जब दिवाली थी, मैं दिवाली वाले दिन अपने घर नहीं था, I was at करतारपुर, अपने डेरा बाबा नानक में था मैं। So we have been given around 20 to 30 families को हमने 11,000 रुपीज़ की जो एक अमाउंट होती है वो हमने उनको दी है वहाँ पे। Just because I was the one कि मेरे को ये था कि यार ये लोग ना, हमने कुछ परिवार पहले से निकाल के रखे थे जो हमें पता था कि इनके, क्योंकि एक आंटी थे हमारे, उनके तो हस्बैंड मतलब दे बोथ आर वेरी लाइक 70+ होंगे, उनके तो जो हस्बैंड थे वो उसी में ही चले गए, मतलब बाढ़ में ही उनकी डेथ हो गई, राइट। तो उनके पास कौन है अब, उनकी जो पेंशन आती थी वो रिटायरमेंट पे जाएगी, जब जाएगी तब जाएगी, अभी तो उनके पास पैसे नहीं है ना। तो दैट हाउ वी हैव गिवन देम दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हाउस होल्ड, हर चीज। Okay, then let's talk about women empowerment. Yes. So, how do you help in, do you feel like कि अभी भी हमें equal rights नहीं मिल रहे हैं, या फिर women is facing any kind of backlash in some sort of areas? I will say, Mokshita, in urban areas, women are getting like equal rights are there, rights yeah. now, right? But पहले के टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, and but in slum area, I will say when we go to the rural areas और urban में ही slum areas में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे आज भी ये चीज़ है कि जहाँ पे उनको जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते। आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज मैं अभी अगर जा रहा हूँ एक सैनिटरी पैड ड्राइव करने, राइट, तो आज भी वहाँ पे कई जगहों पे, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, चंडीगढ़ में ये सब नहीं है। चंडीगढ़ में आप स्लम को जाओ, उनको दिख रहा है स्टे फ्री है तो ले लेंगे, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप जाओ राजस्थान में, हरियाणा में जाओ, जींद में जाओ, हमारी जींद में टीम है, राइट। राजस्थान में आप चले तो जयपुर, उदयपुर, हमारे यहाँ पे टीम्स है, तो वहाँ पे आज भी एक टैबू है कि वो उनको हमें एक न्यूज़पेपर में या ब्लैक लिफाफे में देना पड़ता है, राइट। सो वो एक टैबू भी है, बट विद द टाइम हम धीरे धीरे उस टैबू को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। by I myself featured in official Humans of India as official Humans of Bombay for doing this campaign only, right? If you have gone through my profile, so you will see कि मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम करता हूँ, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे तो देखो हर चौथा एनजीओ काम करता है, राइट। क्योंकि अभी ऐसा है कि कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स आ गए, तो वो वर्किंग की डेली वर्कशॉप कर ली। बट हमारा ये है कि हम पर्टिकुलर पहले अवेयरनेस सेशन करते हैं जाके वहाँ पे। वंस वी डू द सेशन देन वी डिस्ट्रीब्यूट द पैड्स, राइट। एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। सो वी हैव
the collaboration with most of the hospitality partners, like Marriott is there and Tech Mahindra is there, जो इन बच्चों को particularly vocational trainings करवाते हैं, like stitching is there, hospitality के लिए like आपका जैसे रूम क्लीन करना है, ठीक है, ये सब करना है, जो भी हॉस्पिटैलिटी का रहता है, गेस्ट की है, कोई क्लीनिंग है, तो वो सब इनको सिखाया जाता है, एंड आफ्टर दैट दे गेट अ पेरोल जॉब इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन ओनली, राइट। अगर मैरिड है तो मैरिड दे रहा है, रेडिसन तो रेडिसन दे रहा है, राइट। सो यहाँ से हम इनकी एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, राइट। सो दैट हाउ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, we are not like the one who is working for one individual beneficiary out there, right? We are working, if we are adopting one slum area, then we are taking care of entire livelihood of that particular area. तो उसमें उसके पापा भी आएंगे बच्चे के, उसकी मम्मी भी आएगी क्योंकि छोटी बहन है वो भी आएगी, तो हम उन सबकी टेक केयर कर रहे हैं, एंटायर एक फैमिली। होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारा ये नहीं है कि अगर बच्चा है तो बच्चे को ही खाना दिया, सब कुछ दिया, नहीं। कई जगहों पे हमारा स्लम एरिया ऐसा भी है कि जहाँ पे हमें लगता है कि ये लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये डेली राशन अफोर्ड कर सके, कोई 20 रुपए की चीनी लेके आ रहा है, कोई 10 रुपए का तेल लेके आ रहा है, तो हम एवरी मंथ, ठीक है, उनको राशन किट्स भी प्रोवाइड करके देते हैं। बट इन फ्यू एरियाज, आई विल नॉट से कि आई एम कवरिंग ऑल द एरियाज, क्योंकि देखो कहीं पर ऐसा है ना कि हमें इस चीज के लिए सर्विस करने पड़ते हैं, ठीक है, कि किस एरिया में है। मैंने ऐसे स्लम्स भी देखे हैं जहाँ पे आपके घर में बादाम नहीं होगा, उनके घर में 2-2 किलो बादाम है, वहाँ पे मैं अगर जाके डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करूँ, कोई फायदा नहीं बनता, राइट। तो उस चीज़ का हमें उनकी बैकग्राउंड भी चेक करनी पड़ती है। कई बार कई लोग क्या होता है ना कि स्लम एरिया में ना लोगों को रहने की आदत डल जाती है। अभी रिसेंटली जो एरियाज इन्फोर्स हुए हैं चंडीगढ़ में से, उन लोगों के घर बन रखे हैं विलेजेस में, नियर बाई मलोए में, जहांपुर में, इनके विलेज घर बने हुए हैं 100 गज के, बट स्टिल दे आर रेजिडिंग इन स्लम एरियाज। शॉक टू नो, राइट। बट अब वही चीज है कि उन्होंने मेरे से कह रहे, बट जहां से वो उठे थे वहीं से उठ नहीं पा रहे ना इन फ्यूचर के लिए, तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। हम लोगों को वही बताते हैं कि आप लोगों को देखे हमें बेनिफिट नहीं है। हमारा जो हम सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये तो गरीब है, ये इसलिए इसको देना है, सब कुछ करना है, जो हमारा वहीं से ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आती है लोगों को। तो हम इस चीज़ हमारे डोनर्स को भी पता है, CSRs को भी पता है, इवन आई एम द वन जो हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देते हैं प्रॉपर एवरी मंथ। हमारे हर डोनर को एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जाती है कि ये वाला स्लम एरिया था, ये सब चीज़ था, दिस इज हाउ दिस था। तो आपके पास एक प्रॉपर डेटा है कि इन एरियाज में जाएगा और रेगुलर बेसिस पे जाएगा। When we do a survey of any slum area जहाँ पे हम यहाँ काम करने वाले हैं, हम उनके बिलो द पॉवर्टी के कार्ड्स लेते हैं, उनके पर्टिकुलरली नंबर लेंगे, नो इनकम सर्टिफिकेट है अगर किसी के पास तो वो भी लेंगे हम। सपोज हमारे पास कहीं स्कूल के बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं भैया मेरी फीस नहीं पे हुई, राइट, तो पापा उनके है नहीं, अगर मदर के पास नो इनकम सर्टिफिकेट होगा देन ओनली वी विल पे द फीस, अदरवाइज वी विल नॉट पे द फीस। तो आप ये सब काम मैनुअली जाके करते हो? आवर टीम गोज मैनुअली, ऑटोमेटिक, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज मोक्षिता, आप AC के कमरे में बैठे हो, ठीक है, और आप सोचो मैं यहाँ से 100 रुपये डोनेट कर दूं और वो किसी की लाइफ में चेंज लाते, वो नहीं लाएगा। टिल डेट 13 years ऑफ आश्रय, मैं आज एवरी टीम के अंदर एवरी मंथ मैं हर टीम के पास जाता हूँ। आई अंडरस्टैंड द वॉलंटियर्स पेन, आई अंडरस्टैंड लीडर का पेन जो टीम लीडर है, आई अंडरस्टैंड द बेनिफिशरीज का पेन, जो मुझे लगता है कि ये सब चेंज करना है। आई डू ऑडिट्स, मैं ऑडिट हर टीम के अंदर करता हूँ। आई हैव अ टीम जो मेरे अंडर काम करती है, तो वो भी ऑडिट्स करते हैं जाके। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। होता क्या है ना कि टॉप मैनेजमेंट बैठी है ऑफिस में, लोअर मैनेजमेंट क्या कर रही है, उससे लोअर क्या कर रही है, किसी को नहीं पता। वहां पे सब कुछ माइक्रो मैनेज होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट आश्रय के अंदर मैंने शुरू से नहीं रखी। आती है प्रॉब्लम, आई विल से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती है, छोटी छोटी बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट स्टिल आई प्रेफर कि हम चीज़ इसको इग्नोर ही करें। ओके, सो एज अ लीडर आपको हर एक चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ती है। डोंट यू थिंक आपके लिए बहुत हैक्टिक होता होगा कि अपनी पर्सनल लाइफ भी है, एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे सर्वेज भी कंडक्ट करवाने हैं? सी आई चूज टू दिस, राइट। अब आप एक आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर जाता है, वो अपने दिमाग में सोच के जाता है कि मुझे सोल्जर बनना है और देश के लिए लड़ना है, राइट। तो अगर मैं
इस डिवीजन में आया हूँ, राइट? इफ यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, सो यू हैव मेक अप योर माइंड कि मैं इसमें हूँ तो इसी में जाऊंगी यार, मुझे इससे आगे कहीं नहीं जाना, राइट? मेरे जहन के अंदर ये चीज आ चुकी है कि भाई अगर मैं सोशल मीडिया के अंदर हूँ, एंड आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल गाय, मेरे को एक स्कोप है, मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मुझे 17 साल से लेकर अपनी 24 साल की उम्र तक ये करना था, वो गोल अचीव किया। अब 25 से लेके 30 तक ये करना है, गोल अचीव करूंगा। 30 से लेके 35 तक ये करना है, उसके बाद मैं कोई नौकरी भी नहीं करूंगा। उसके बाद ओनली होलसेल आई विल वर्किंग फॉर आश्रय इटसेल्फ, राइट? तो आई हैव पर्टिकुलर डिसाइडेड दैट जो मेरी ये जिंदगी के 5-5 साल का मैं आपको गैप जो बता रहा हूँ, ये कैसे मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। And this is very much important. Some people ask me this question as well. ये आपके क्वेश्चन को ही रिलेट कर जाएगा कि आप इतना टाइम मैनेज कैसे करते हो, ठीक है? तो दिस इज द आंसर टू ऑल द पीपल अराउंड देयर, दैट आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को 12 घंटे दे रहे हो अपने पूरे इंटायरली प्रोफेशनल वर्क को, तो आपको, मैं भी ऐसी करता हूँ, मुझे पता है मैं आश्रय के अंदर इतना ही टाइम दूंगा। मैं 5 बजे के बाद किसी भी टीम का रिप्लाई नहीं देता तो नहीं देता, जो मर्जी हो जाए, अनटिल अनलेस किसी सीनियर की कॉल ना आए मुझे मेरी टीम में से, राइट? मुझे पता है कि मेरा ऑफिस का काम शुरू होता है 9 बजे से लेकर इतने बजे तक मुझे करना है, मैं वही काम करूंगा, ठीक है? तो वंस यू विल मेक योर टाइम टेबल, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, राइट? नो डाउट 3 बजे भी मुझे उठना पड़ता है, 4 बजे भी मुझे उठना पड़ता है, एंड आई डोंट नो, माई एडमिन टीम ऑलवेज बुक मॉर्निंग फ्लाइट्स में, कि मेरी टीम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे से, सुबह की फ्लाइट हमेशा बुक करते हैं, एंड आई हेट मॉर्निंग फ्लाइट्स। आज भी हम यहाँ जब मैंने आना था, उन्होंने मॉर्निंग की फ्लाइट बुक करके दी। गॉड। एंड ऑलवेज दे डू दिस, या तो रात की करेंगे, रात ऐसी रात की कर देंगे 2 बजे की, या फिर सुबह सुबह की करेंगे। बाय द वे, हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर का एक ये गोल होता है कि जब मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे लिए कोई ना कोई काम कर रहा हो, वहां से इनकम आ रही हो। तो आपका भी ऐसा कोई गोल है? नो, मैं देखो, सिंपल सी एक बात है, 9 घंटे की शिफ्ट है हमारे ऑफिस के अंदर, तो 9 आवर्स ही काम करो। उसके बाद मैं उनकी लाइफ में इंटरव्यू नहीं करता, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती मैं अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ में इंटरव्यू नहीं करूँगा। ये मेरा एक, मैंने यही अपने टीम लीडर्स को समझाया, ठीक है? कई बार होता है कि हमें कोई मीटिंग, कोई जैसे हमारा कोई इवेंट है या कुछ चीज़ है हमें वहाँ पे करना है, तो वंस इन अ ब्लू मून इट वर्क्स, एम्प्लॉय को भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट मैं कभी तंग नहीं करता। मेरा होता है कि अगर मेरा किसी ने एक फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे, राइट? बट जो आपकी टाइमलाइन है, माइट बी यू आर वर्किंग 11 to 8, 12 to 8 या 12 to 9, ठीक है? मैंने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई तुम्हें नहीं आना ना ऑफिस मत आओ, नहीं आना ऑफिस मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, घर से काम करो, मुझे मेरा काम चाहिए, दैट्स ऑल। आई हैव दिस काइंड ऑफ रूल एट माई वर्क प्लेस, एट आश्रय ऑफिस, दैट व्हाट वी डू इज, उनको मंडे ट्यूजडे ऑफिस आना होता है, वेडनेसडे थर्सडे मत आओ ऑफिस। हमने 3 दिन मैंडेटरी रखे हैं ऑफिस में आने के लिए, बाकी जो 3 दिन है तुम्हारे, या जो 2 दिन बचते हैं, जहाँ से मर्जी काम करो, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं ऑलवेज हायरिंग के ओरिएंटेशन में ये कहता हूँ, तुम जुपिटर से काम करो, काम होना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बिकॉज अगर आप अपने एम्प्लॉय को कंफर्ट नहीं दोगे, एक वो चीज नहीं दोगे, तो वो नहीं करेगा, राइट? वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बट अभी क्या है ना, ये कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चलता था, बट अभी क्या है कि हमारा डिवीजन ऐसा है कि हमें रिसर्च करनी है तो बच्चे को जाना पड़ेगा, ठीक है? एम्प्लॉय को जाना ही पड़ेगा, तो वो चीज रहती है। फील्ड टीम को तो ऑफिस आना पड़ता है, जो सर्वे कर रहे हैं, R&D टीम की ऑफिस आना पड़ता है, डेली आते हैं ऑफिस। ऑलराइट, सो चंडीगढ़ में हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, एंड फॉर दैट बिल्डिंग्स बनाने के लिए एंड वो एक स्पेसिफिक एरिया क्रिएट करने के लिए, एनवायरनमेंट बनाने के लिए, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर गेटिंग डिप्लीटेड। सो उस चीज़ में आप कैसे हेल्प आउट कर रहे हो? आई विल से दैट हम ग्रोथ को तो नहीं रोक सकते, वैसी बात है, ग्रोथ को हम नहीं रोक सकते, बट ऑटोमेटिकली दीज कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो हेल्पिंग अस टू प्लांट ट्रीज, राइट? और इन्वायरमेंट के ऊपर हम आश्रय इज वर्किंग ऑन मेनी अदर थिंग्स, राइट? कि आश्रय सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप जो प्लांटेशन करके हमने छोड़ दी, ठीक है? एवरी मंथ वी आर डूइंग प्लांटेशन ड्राइव्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन घाट्स, राइट? इफ यू विल से हरिद्वार अभी हमारा रिसेंटली क्लीन अप होना है, राइट? वी आर ऑल्सो क्लीनिंग अप दिल्ली। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ऑटोमेटिकली इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, अभी दिवाली के टाइम पे आपने AQS अपने देख लिया होगा कितना पार हुआ है, राइट? सो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स एनवायरमेंट with the help of corporates and with the help of our volunteers to take it care कि भाई देखो, हम पूरा तो चेंज नहीं कर सकते,
धीरे 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 Right. करेंगे. फॉरेस्ट क्लीनअप्स हैं हमारे पास जो है रिवर क्लीनअप भी हम करते हैं. वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द यमुना घाट, राइट, वहाँ के क्लीनअप भी हमारे चलते हैं. तो ऑटोमेटिकली वी आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो वी आर मेकिंग इट श्योर दैट पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट, राइट. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कुछ नुक्कड़ नाटक करते हैं, राइट, जिसके अंदर हम नॉर्मल सीपी में जाएंगे, नुक्कड़ नाटक करके आएंगे कि भाई इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे कूड़ा मत फेंको, राइट. या फिर हम रेस्टोरेंट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, कि आप लोग ये प्लास्टिक के जो चीज़ों में खाना देते हो, इसको अवॉइड करके आप बायोडिग्रेडेबल में देना, जो हो सकता है डिग्रेड हो सकता है, राइट. ताकि थोड़ा थोड़ा जितना भी हम कर सकते हैं वो चीज़ है. अब क्लीनअप में देखो सारे एनजीओ क्लीनअप कर लेते हैं, राइट, बट द प्रॉब्लम इज द वेस्ट मैनेजमेंट, राइट. उसको डिवर्सिफाई कैसा किया जा रहा है. सो वी हैव, जब भी हमारी मुंबई में, दिल्ली में जब भी हमारी ड्राइव होती है, तो उसमें से वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए हमने एक कंपनी के साथ टाइप कर रखा है, वही हमारा सेग्रीगेट करती है, राइट. इको करी इज द कंपनी विच वी हैव टाई अप. आपने बहुत सी एड्स देखी होंगी कि वो एब्सोल्यूट की बोतल में वो कुछ शेपिंग बना के दे देते हैं, उसके अंदर आजकल बड़े उनके यूटेंसिल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो अपना सेट बना के देते हैं, कॉफी मग बना के दे दिया कांच का, ठीक है, तो वो सब उससे बना के दे रहे हैं. दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, राइट. सो दैट क्योंकि आप क्या कर लोगे, आप सामान यहाँ से कूड़ा उठाओगे, डस्टबिन में फेंक दोगे, वो कूड़ा कहाँ गया, कैसे गया, आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, नो वन नोज अबाउट इट. व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एनी कॉज, एनी कैंपेन, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट यू आर गिविंग एन इम्पैक्ट ऑन दैट. अगर मैं आज बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन बच्चों में से कोई आज जो है वो पुलिस की नौकरी में है, जो मैंने अपने टाइम पे हमारे की हुई है, आज वो नौकरियां भी कर रहे हैं, कोई अच्छी किसी कंपनी में काम कर रहा है, राइट. तो उसका इम्पैक्ट आया ना. ऐसा तो है नहीं हमने बीच में छोड़ दिया, राइट. आज आप हमारे बच्चों के पास जाओगे, आप उनको पूछोगे 2 का टेबल क्या है, 4 का टेबल क्या है, 5 का, दे विल टेल यू लाइक दिस, राइट. जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग इट श्योर, हमारा हमने ऐसा एक बना रखा है एनवायरनमेंट आप कह लो, या फिर आप एक SOP कह लो हमारे लिए, कि वो चीज़ उस हिसाब से चलती है, और उसके ऊपर एक चेक भी होता है कि चल भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेम गोज विद द एनवायरनमेंट. All right, Shane. So we have a fun segment right now, and it's a rapid fire round. And I would be asking some questions, and you have to answer them within a second, or within a single सीरियस कन्वर्सेशन word. चल रही थी, मोक्षिता ने बीच में ऐसे डाल दिया कि वो रैपिड फायर में डर गया. मैं कहा देखो अगर ज़्यादा टाइम लिया फिर कोई पनिशमेंट तो नहीं no, देगा. it's a rapid fire, तो क्विक शॉट में हो जाएगा. ठीक है, डन है. Punishment नहीं मिलेगी. Don't ठीक worry. है. Okay. So your first question is one word that defines Shane Bakshi. I will say passionate. I'm passionate about many things. So passionate. Yes. Okay. Second, the one quality every change maker must have. Since you are a Honesty, change- I will say. Honest. Honesty. Okay. A social cause that's closest to your heart. Pathshala segment in education. Okay. If not an NGO founder, what would you be doing today? A corporate slave, I will say. Slave? Yes. Okay. That's rude, by the way. The biggest myth about social work. पैसा खाते हैं जी, काला पैसा से वाइट करते हैं और अपने घर कोठी बना लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं ऐसा. और अगर मेरे पास BMW है तो क्या पता वो भी डोनर के पैसे से ली हो. बट ऐसा कुछ सिनेरियोज में मैंने सुना है. इट्स ट्रू. आपके उंगलियां 5 हैं, बराबर तो नहीं है ना, कोई छोटी को बड़ी है, Yeah. है ना. सेम गोज विद एनजीओस, सेम गोज विद कॉर्पोरेट्स, हर किसी के साथ सेगमेंट पे है. बट लोगों का ये बिलीफ है कि एनजीओ फाउंडर्स आर लिविंग इन हिडन लग्जरी. हिडन लग्जरी में देखो, आई विल से, मैं तो आज भी, अगर आप मेरा कभी लाइफस्टाइल देख लोगे, मैं आज भी एक 50,000 की एक्टिवा 125 पे जाता हूँ बाहर. मेरे वॉलंटियर्स मुझे बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि आप गाड़ी में चल जाओ, आप ले सकते हो, क्यों नहीं ले रहे. मैं नहीं लेता भाई, मुझे नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ. मेरा एक सिंपल मोटो है. मैं तो मतलब आज मैं आप लोगों के सामने बन ठन के आया हूँ. आई डोंट गो लाइक दिस. मैं ऑफिस में ट्रैक सूट डाल के, पजामा डाल के चल जाता हूँ. मैंने सेम अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तुम्हारा दिमाग, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग कहाँ लगना है. तुम्हारा कपड़ा वपड़ा कोई नहीं देखने वाला. पीपल आर रनिंग बिहाइंड दिस काइंड ऑफ कि आई वांट टू वेयर अ ब्रांड, आई वांट टू हैव दिस अरमानी का बेल्ट, ये बेल्ट, वो बेल्ट. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ ओनली, 22 में शास्त्री मार्केट होती थी, मैं कपड़े वहाँ से भी लिए हुए. सिंपल बात है. कपड़ा वो भी सेम है, ये भी सेम है.
कुछ नहीं होना है. It's all about in your mind. The type of person you are. Yes. Okay. ज़्यादा लंबा हो गया. A campaign you're most proud of. Satrang campaign, I will say, where most of the people are not working, we are working in that particular segment. और इंडिया वैसे भी काफी पीछे है थोड़ा LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए. इंडिया पीछे, यूएस भी उसकी चीज को बहुत, वो भी कोई इतना वास्ट नहीं है. US is kind of glorifying. ग्लोरीफाइंग भी कर रहा है, बट ऑटोमेटिकली ये चीज़ों के ऊपर कोई और आई विल से कंट्री बात भी नहीं कर रही है. इंडिया के अंदर बात होती है, अब थोड़ा सा इनका भी इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ है, राइट. Yeah, that's यू great. कैन सी सम IPS, some IAS ऑफिसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑफ कम्युनिटी ओनली, दे आर कमिंग नाउ. One thing you have learned from working with children. शरारतें, पहली बात तो शरारतें मैंने अपना जो बचपन है वो बहुत क्योटिक सा देखा है, जस्ट बिकॉज एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट आई लॉस्ट माई फादर इन वेरी यंग एज. सो वहाँ पे मेरा एक मतलब हमारे घर में थोड़ा ऐसा माहौल रहता था कि सब शांत हैं, कुछ नहीं है. मतलब मैंने अपनी, बच्चे कहते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करी है. मैंने अपनी लाइफ 5th स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक की करी होगी, उसके बाद मैंने नहीं एंजॉय करी. तो मैंने बच्चों से शरारतें भी सीखी हैं, क्या कैसे करना है, राइट. एक मैंने बच्चों से ये चीज़ सीखी है कि जो स्लम के बच्चे हैं, स्पेशली आई विल नॉट कंसिडर एनी प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों से मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो जैसा है ना, आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है. वो तपती गर्मी के अंदर भी, जब टेम्परेचर चंडीगढ़ का 46 डिग्री भी चल रहा होगा, वो तब भी उन जोगियों में रह रहे थे, राइट. एंड माई सेल्फ आर सिटिंग इन अ चिल्ड AC रूम, राइट. बट वहाँ से वो उनके अंदर जो एक रहने की क्षमता है, एक पर्टिकुलर उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, वो चीज़ आपको होना चाहिए. और मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपने अच्छे दिन याद है तो आपको अपने बुरे दिन भी याद होने चाहिए. That's great. One woman who has inspired you personally. माय मदर. Mom. वो तो ये क्वेश्चन तो पूछने का नहीं वही था. She has given me a Yeah. power to build this empire today, and whatsoever I am, I always say just because of my mother, just because मुझे इंस्पिरेशन ही उनसे आई थी. माँ तो माँ होती है. One message you'd give to the youth of India. I will say that most of the cases I have listening today कि भाई work life balance नहीं है, कुछ नहीं है. I will say कि if you want to be a particular successful person, you should encourage yourself, right, and you have a particular mission and vision in your mind itself. Okay. अगर वो सब नहीं है तो I will say आप शीन बख्शी भी देखना पाते अगर मेरे में मिशन विजन ना होता, राइट. इनकरेज किया है, नो डाउट सोसाइटी विल चेज यू अप फॉर लॉट मेनी थिंग्स. मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सोसाइटी आपको हमेशा बाहर फेंकेगी. हमारे पास ऐसे भी, मतलब मैं जब इस ग्रोइंग जर्नी पे था, मुझे बहुत से लोगों ने डिफेम भी किया कि ये तो ऐसा है, इसकी एनजीओ ऐसी है, इसकी एनजीओ ऐसी है. बट मैं अपना स्टेबल था कि जो मेरा विजन है मुझे वो पूरा करना है. एंड वंस यू अचीव योर मिशन ना, ओनली दिस पीपल हु आर सेइंग बैड अबाउट यू, दे विल कम टू मीट यू. ऐसा मैंने सुना है कि जब यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते वैसे भी, तो लोग आपको वैसे भी सीरियसली नहीं लेते हैं. दे विल वो क्रिटिसाइज तो हमारे घर के रिश्तेदार भी लेते हैं एट एवरी पॉइंट. आप ये देख लो. All right. So kindness for you means? Kindness for me is like helping anyone out there, right. मतलब never ever judge any person कि वो क्यों भीख मांग रहा है. अगर वो भीख मांग रहा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा. I have seen lot of many people that who are begging around roadside, but I will say कि उनकी भी कोई मजबूरी है, तो आप ऐसा मत करो कि आप उनको मत दो. Give them, मैं कैश भी नहीं बोलता, कैश तो कभी कुछ दो, बट गिव देम अ पर्टिकुलर गुड्स, व्हाटएवर यू कैन डू. अगर आपकी गाड़ी में एक बिस्कुट का पैकेट भी है ना, आप वो दे दो. देना इज इम्पोर्टेंट. यस, देना इज लाइक सेवा इज इम्पोर्टेंट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बिजी हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता, या मैं ग्राउंड लेवल नहीं जा सकता, यू कैन डू सेवा. You are giving your time to a corporate job which is of 9 to 10 hours, right? Once you will go back to your home, हर कहीं पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है. कोई ना कोई बच्चा हमेशा मांग रहा होता है, आप उनकी हेल्प कर दोगे, आपके 50 रुपए से भी, चाहे आप उनको बिस्किट खिला दो, कुछ भी खिला दो, you are doing सेवा, you are making an impact. True. A habit you believe you can make the world a better place? सेवा only, I will say. Seva. By seva, this word becomes from a Punjabi origin, but I will say that सेवा हमारे ब्लड के अंदर है. और हमारे जो सिखिज्म के गुरु नानक जी, उन्होंने हमें सिखाई है कि
अपना जो हमें लिगेसी हमारी लंगर की चलती है उन्हीं से चली है। तो सरबत दा भला इज माय मोटो व्हिच आई वर्क फॉर, कि सबका भला हो इसके अंदर। The toughest part about running an NGO? Always the funding. The funding. Funding, I will say, number one is funding. Number two is the execution and admin part. Third, that to retain your volunteers and your team. To build that trust. Yeah, to build the trust. One word to describe Ashray Foundation. Hope. Hope. Yes. Just because we are providing a hope out there in people, and that's why we have a tagline, a shelter of hope. We hope so. आगे वो बहुत अच्छा वर्क करे। Yes. अभी भी कर रहा है obviously. A quote or line you live by. A quote or line. Yeah. ऐसा तो यार कोई लाइन मतलब है नहीं मेरे लिए, जैसे अगर बट हाँ, आई ऑलवेज से दिस वन लाइन इन माई एवरी पॉडकास्ट आउट देयर, दैट नेवर एवर क्विट, नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस विल टेक यू ऑफ। ये एक छोटी सी जिंदगी है, आपको बहुत बुरा भी इसने इसी आपको आपके फेज में दिखाना है और अच्छा भी आपको आपके फेज में दिखाना है। बट इफ़ यू विल क्विट, यू विल ख़त्म कर लोगे अपने आप को। नेवर एवर क्विट एनी सिचुएशन। Mine is grow through what you go through. Yes. So I think Never quit and never back down relate is कर my रहा है। motto, which I take care of, कि मुझे personally इस पे काम करना है। Okay. Okay, the last one. If you could change one thing about society overnight, what it would be? लोगों का भ्रम दूर कर सकता हूँ मैं कि जो लोग सोचते हैं कि एनजीओस को पैसा देने से वो अपने पास ही पैसा खर्चते हैं, क्योंकि आप आओगे तभी आपको पता लगेगा। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव द पर्सन हु इज गिविंग अ ₹1 डोनेशन टू अस, आई ऑलवेज आस्क देम दैट प्लीज कम एंड विजिट आवर प्लेस। इवन फॉर द CSRs हम एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमारी कम्युनिटी किचन्स है जो हमारी पाठशाला में, तो वो लोग खुद आते हैं, खाना बनाते हैं और खुद ही सर्व करते हैं। तो दे गेट टू नो कि दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। तो ये जो भ्रम है, अगर मेरे को मिले कोई ऐसी मिस्टर इंडिया बनूं मैं कभी अगर, तो ये चीज़ मैं दूर करना पाऊँ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि एक एनजीओ कितनी जेन्युइन है? देयर आर मेनी पोर्टल्स आउट देयर। अब तो जैसे हम अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन सी आवर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से आप एक चीज़ पता कर सकते हो। सेकंड, अगर किसी वेबसाइट में अगर नहीं है, आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी नहीं है, तो NGOdarpan.com is the website which is by the government only. You can just put up the legal name of that particular foundation. For Ashray it says SWB, Ashray Shelter of Foundation. So you will put SWB a particular, like उसका आप initials डाल दोगे तो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि एनजीओ दर्पण का जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ने ही मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल द एनजीओस आउट देयर। अगर आपके पास वो नहीं है तो अगर आप वहाँ पे एनजीओ नहीं देख पा रहे हो, इट मींस वो एनजीओ फेक है। राइट। सो दैट वाज अबाउट द रैपिड फायर राउंड। सो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो एक डॉग्स पे बैन लगा था, डू यू फील कि इट वाज राइट? बिकॉज सी रेबीज जो है वो एक एक्चुअल में प्रॉब्लम है विच इज़ नॉट क्योरेबल एंड देयर इज़ अ डेंजर। तो ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं। सो कुछ लोगों के फेवर में है ये चीज़ कि या वी शुड डू दिस एंड सम पीपल आर वेरी अगेंस्ट अबाउट इट। देखो, सोसाइटी के दो पर्सपेक्टिव तो हमेशा से रहे हैं, 50-50 की एक रेशियो रहती है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मीडिया ना आपको प्रॉपर चीज़ नहीं दिखाती, राइट? अब क्या है कि जब आपने रेबीज की बात करी, MCD को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को अच्छे से फंड एलोकेट हुआ था, ठीक है, टू स्टेरिलाइज द डॉग्स। अगर उन्होंने ये 3-4-7 साल पहले जो है स्टेरिलाइज कर लिया होता तो आज डॉग्स की आबादी ज्यादा ना होती, राइट? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इफ दे वांट टू बैन द डॉग्स एंड दे आर सेंडिंग देम टू द शेल्टर होम्स, हैव यू बिल्ट एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट काइंड ऑफ कि जहाँ पे इतने सारे डॉग्स एक टाइम पे आ सकें? गवर्नमेंट के SPCA सेंटर्स, आप चंडीगढ़ का SPCA सेंटर जाओगे ना, आप देख लेना उसकी क्या हालत है। दिल्ली में जाओगे तब आप हालात देख लेना उसके। तो जब आपके पास इंफ्रा नहीं है, आपके पास कोई ऐसा लाइक पूरी टीम नहीं है जो उन डॉग्स की टेक केयर करे, फिर तो मर्डर करना हुआ ना, राइट? फिर तो अब एक, चाहे आप किसी इंसान को, आपके पास घर नहीं है, आप उसको ऐसी रोड पे दे दो, वो तो मरेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। सेम गोज विद द एनिमल्स। तो दीज 2 पॉइंटर्स एंड 3 पॉइंटर्स आर देयर, इसी वजह से ही बैन लगा। और जब ये डॉग वाला सीन चल रहा था, आई वॉज द वन, हमारी फाउंडेशन थी, हमारे साथ और फाउंडेशंस थे,
जिन्होंने चंडीगढ़ में, दिल्ली में, जयपुर में इवन हमने प्रोटेस्ट किया है इसके लिए, राइट। एंड दिल्ली में तो मतलब इतना मोमेंट हीट चपड़े चढ़ गया था कि लाइक पीपल लाइक मेरी खुद की टीम जो है वो पर्टिकुलरली दे वर ऑन द रोड्स बट दे वर आल्सो गेट अरेस्टेड फॉर द सेम। रातों रात मैंने अपने एडवोकेट किया है, एडवोकेट को मैंने भेजा है, तब जाके बच्चे वापस आए, राइट। तो गवर्नमेंट को अब अगर गवर्नमेंट को ये चीज बोल दो तो वो क्या करेगी, वो झाड़ू वाले पे लगा देगी इल्जाम कि ये तो आम आदमी का काम था, हमारा काम थोड़ा ना, हम तो अब आए हैं। यू आर द पासिंग ना, बीजेपी अब पास कर रही है ये चीज, तो पहले आप काम कर लो, फिर आप अपना जो भी करना है आपने वो करो। मैं तो कहता हूँ सही है, ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, राइट। उनको अगर, बट उनको एक प्रोसेस होता है हर चीज का, अगर आप वो नहीं फॉलो करोगे, अब आप किसी को भी पकड़ के इंजेक्शन नहीं लगा सकते डॉग को, उसका अगर एचबी कम हुआ वो पागल हो जाएगा उस इंजेक्शन से और वो उसको फिट्स आना शुरू हो जाएंगे। डॉग्स का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, जैसे हम चिल्ड्रन करवाते हैं तो पहले एक दिन पहले उसको लेके जाएंगे, हमारी वैन आती है जो हमने टाइप किया हुआ है जिसके साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ, उनको कैच करके लेके जाएंगे, उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पार्वो तो नहीं है, इसका ब्लड कम तो नहीं है, या इसको कोई पर्टिकुलरली इन्फेक्शन तो नहीं है। वंस A1 रिपोर्ट आती है उसकी, तब उसकी सिलेक्शन की जाती है, फिर उसको आईसीयू में रखना पड़ता है क्योंकि उनके स्टिचेस लगते हैं उस टाइम पे, राइट। तो दैट हाउ देयर इज अ प्रोसेस, बट ये सरकार को नहीं समझ में आएगा और ये ट्रूथ सामने भी नहीं आते हैं लोग, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत से कम लोग हैं जो डीप किसी चीज में जाते हैं। आज आपके एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा ना, आप वो फॉरवर्ड मार दोगे आगे बिना कुछ सोचे समझे। यू विल नॉट लाइक, आई एम नॉट सेइंग टू यू, बट देयर आर लॉट मेनी पीपल आउट देयर जो बिना सोचे समझे मैसेज वायरल कर देते हैं, राइट। कमेंट सेक्शन से लोगों के ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में तो छोड़ ही दो ना, वहां पे तो मैंने बात करना ही बंद कर दी है, मैंने ट्विटर करके बंद कर दी कि मेरे से ना इतना सब सहा नहीं जाता। क्योंकि जब आप लोगों की मेंटलिटी देखते हो कि आप सोचते हो कि यार आप अच्छा काम करने चले हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ समवन गिविंग अ नेगेटिव वाइब ना, आपका ऑरा चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव लो ही मत, मैं तो सिंपल बात बोलता हूँ, पॉजिटिव वैसे काम करो। ओके, बट ऐसा नहीं है कि जो जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हैं ये अभी से कंडक्ट होने स्टार्ट हुए, ये पहले से भी होते आ रहे हैं, एंड स्टिल लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज हो पा रही है। पहले भी होते थे बट उस स्केल पे नहीं होते थे। जैसे अब प्रोटेस्ट वाली बात आई, एकदम सारे लोग आ गए, ठीक है। अब वो लोगों में से ऐसे लोग भी होंगे जो डॉग्स के लिए काम अब तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। सेम गोज विद व्हेन मोमिता रेप केस हैपेंड, everyone was on the streets in Chandigarh, in Jaipur, every city people were on the roads, but have you asked that अब उसकी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है? No one asked that. वो दोबारा से नहीं आया। इंडिया में प्रॉब्लम ये है, वो है ना भेड़ चाल में चलते हैं लोग बहुत। पहले एक टाइम के अंदर बीटेक आई थी तो बीटेक के ऊपर सारे माँ बाप अपने बच्चों को फोकस कर, बीटेक बीटेक बीटेक। आज की डेट में एमबीए आई है तो एमबीए कर एमबीए कर एमबीए कर। बच्चे का क्या मन है वो नहीं कोई जान रहा है। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर इन एन इंडियन सिस्टम। So how do you tackle this? आप लोगों को अवेयर करना चाहते हो इन चीजों को? अवेयर देखो, अवेयरनेस हम कर सकते हैं बट सामने वाला हमारा कहना जो हम बोल रहे हैं उसको मानने वाला भी That is the problem ना, लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज हो रही है। अब हमारा जो स्लम एरिया है वहाँ पे हम लोगों को, आप मानोगे नहीं, हमें 4 से 5 साल लगे हैं उनकी मेंटेलिटी चेंज करने के लिए। पहले अपने बच्चों को भेजते नहीं थे वो पढ़ने के लिए हमारे पास, ठीक है। क्यों? कोई बात नहीं है, 10वीं में किया करेगा पढ़ के, इसने पापा का रिक्शा चलाना है। वो पर्टिकुलर माइंडसेट हमने चेंज किया कि नहीं, आपका बच्चे के अंदर कैलिबर है। पर और मैं ये कभी नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जिस बच्चे की नरिशमेंट अगर आपने अच्छे से करी हो पढ़ाई वाली इन्वायरमेंट में, वो बच्चा आगे जाकर पढ़ेगा, राइट। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अब्सकॉन्ड करते थे क्लासेस को, मैं तो कान पकड़ के लेके आया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ए वेरी रूड टीचर। मैंने बच्चों को मारा भी है, बट उनको आज मारा तो आज वो ढंग से पढ़ भी रहे हैं, एंड दे हैव गुड, लाइक स्कोरिंग गुड मार्क्स। I'm not say that we are making at an ashram making a merit वाले बच्चे, no, but they are average good students in their own schools. Okay, so society, people, they criticize a lot, yes. Either in terms of social media या फिर real life में या पीछे से कहीं भी. So criticism भी हर एक अलग-अलग चीजों में मिलता है. तो what do you think कि किस तरह का criticism आप face करते हो? On what basis? I will say that क्रिटिसिज्म हमारे लिए, एनजीओज के लिए यही होता है कि अगर कोई भी हमें डोनर जो फंड दे रहा है तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही आता है
कि भाई ये लोग पैसा खाते होंगे, ठीक है, if this guy is having any kind of luxurious car, that right, so why this people is ऐसे क्यों आ रहा है, वैसे क्यों आ रहा है. तो आई विल से दैट ऐसा नहीं है कि हर कोई जो सेवा में आया है या उस चीज में डेवलप हुआ है. देयर आर सम फाउंडर्स वेयर आई हैव सीन कि उन्होंने इसको अपनी एक जॉब बना लिया है, तो दे आर विड्रॉइंग सैलरीज, राइट. But I personally and my mother personally, we don't withdraw any salaries out of from us. We have a payroll for the people out there, for the employees, but we them like we sell, we don't any हम कोई salary नहीं लेते इससे, ठीक है. But you don't even extract a little amount of profit or any No, sort profit तो हमें होता ही नहीं है. पहली बात, जो Okay. हमारी बुक्स जब क्लोज होती हैं, तो जब इसकी बैलेंस शीट बनती है, तो जो अमाउंट प्रॉफिट का होता है वो नेक्स्ट साइकिल में रिवॉल्व हो जाता है. Okay. तो एनजीओ स्टैंड फॉर दिस ओनली, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है, हमारा सिर्फ इनकम के लिए बनता है और बैलेंस शीट्स बनती है, दैट्स ऑल, राइट. तो वो चीज़ रहती है. बट लोग सोचते हैं कि यार इससे इन्होंने ऐसे निकाल लिया, अच्छा इस कॉस्ट से. अभी आई विल से दैट जब हम पंजाब फ्लड्स में काम कर रहे थे, सो वी वर जस्ट गिविंग देम बेड्स, वी वर ऑल्सो, अभी हम स्कूल्स को भी रिवैम्प कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने भाई कोई वेंडर लिया होगा, उसमें से इन्होंने पैसा निकाल लिया होगा. यार मतलब इतना ही दिमाग होता तो मैं आज पता नहीं क्या कर चुका होता. आई विल बी द बिलियनियर इन थ्रू दिस सिस्टम फॉर द पास्ट 13 years आई एम वर्किंग, राइट. बट आई विल से दैट जस्ट बिकॉज वो बचपन में आपने सुना होगा ना, एक सेब गंदा होता है वो सारे सेब को गंदा कर लेता है, ठीक है. तो वो वाली कहानी सच होती है एनजीओ सेक्टर के अंदर, कि कोई एक एनजीओ लेता है, उससे सारे एनजीओ बदनाम हो जाते हैं, राइट. आई विल नॉट नेम एनी एनजीओज, बट देयर आर स्टिल एनजीओज जो भी ब्लैकलिस्ट हुए हैं इसी वजह से. देयर आर सम उनके एफसीआरए जो फॉरेन की उनका लाइसेंस होता है, एफसीआरए बोलते हैं उसको, वो कैंसिल हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट. सो बट वी आर प्राउड, वी आर बाय ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, हम ऐसे नहीं हैं. हमें मतलब आई ऑलवेज फोकस ऑन द सीएसआर फंडिंग, व्हाटएवर वी आर गेटिंग. इवन फॉर द सीएसआर फंडिंग वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनी अमाउंट. जितना हमारा लग रहा है, जो हमारी कॉस्ट है, सच बोल के ले लेंगे. तुम्हारे बजट में आता है तो ठीक है भैया, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सीएसआर नहीं लेंगे. स्टेट नो है, राइट. इट्स बेटर, क्योंकि देखो आप हर काम के लिए यस 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 बोलते रहो ना, वो मत करो कभी भी जिंदगी के अंदर. आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा. और मेरे अंदर ही बहुत चीज थी कि मैं हमेशा यस 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 बोलता था, बट नाउ आई हैव लर्नड कि भाई नो बोलना पड़ेगा आपको. No matter that particular thing is in your favor or not, but you have to say no. If you will not, people will misuse you. So that's the thing. Apart from that, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा I will say that लोग हमारे कमेंट सेक्शंस में आते हैं, राइट. कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि ये तो सिर्फ हिंदू समाज की सेवा कर रहे हैं, या ये तो सिर्फ इनकी सेवा कर रहे हैं, राइट. अब वी हैव बीन एसोसिएटेड विद मेनी फाउंडेशंस लाइक हु आर प्रमोटिंग वेगनिज्म, दे आर नॉट प्रमोटिंग अपना नॉन वेज वाला कल्चर सारा. तो वहाँ पे है कि तुम लोग इस टाइम पे कहाँ जाते हो, ठीक है ना, मतलब तुम बकरा ईद के टाइम पे आ जाते हो मुस्लिम क्रिटिसिज्म करने, बट उसके टाइम कहाँ जाते हो, ठीक है. तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. ऑन ग्राउंड लेवल पे जाते हैं. जब हम पहले आश्रय को हम जैसे स्लम एरिया में जब बच्चों को पढ़ाने जाते थे, तो वहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल वाले घर भी होते थे. तो वहाँ पे वो बोलते थे क्या ये बच्चे तुम्हारे तंग कर रहे हैं, अपने उसमें पढ़ाओ. मतलब हम ऐसी गालियाँ खा के भी आए हैं लोगों से, राइट. तो ये सब क्रिटिसिज्म है. आई विल से कि इनको, अब के लोगों को होता है अच्छा, अब किसी के पास भी चले जाओ ना, किसी को बताओ मैं एनजीओ प्रोफाइल में हूँ, सबसे पहले वो बंदा ये पूछेगा आप फंडिंग कहाँ से लेते हो. पहला सवाल यही आता है. तो पहला सवाल यही आता है. तो यही अब प्रॉब्लम मैंने ये चेंज कर दिया. मैं सीधा बोलता हूँ सीएसआर से आता बात करता हूँ. हमारी आप वेबसाइट पे जाके हमारी बैलेंस शीट चेक कर लोगे, यू विल सी द फंड्स फ्रॉम द सीएसआर. हाँ, तो जो सामने है दैट इज वेरी क्लियर. यस. ओके शीन, मान लो लाइक अगर मैं ही हूँ, अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक सोशल प्रॉब्लम देखी एंड आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू सॉल्व इट, but right now I'm not having any finances or any resources, so how would I deal with that? जैसे आपके केस में you are having that support from your mom, but as a normal person वो कैसे करेगा? I will say that in my case देखो आप अगर पढ़े लिखे हो, एजुकेशन है आपके पास, राइट. सो इफ यू फेस दिस काइंड ऑफ थिंग, जैसे मेरे को एक बच्चा मिला, राइट, मैंने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, फ्रॉम देयर आई गेट स्टार्टेड दिस एंटायर फाउंडेशन, राइट. सो पर्टिकुलरली आप कभी किसी को अगर फाइनेंस से जज करोगे तो आप नहीं, बट आपके पास स्किल तो है, आपका एजुकेशन है, एंड आई फील लाइक दैट एजुकेशन इज द टूल विच यू कैन शेयर विद एनी
एनीवेयर एवरी टाइम, कभी भी आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, राइट? Okay. तो व्हेन यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग एंड यू हैव अ सिचुएशन वेयर किड्स आर एंड आपको पता है कि मुझे सेवा करनी है, आप एजुकेशन की सेवा कर सकते हो, राइट? आप जरूरी नहीं है उसको कुछ सामान लेके दो या कुछ लेके दो, ठीक है? आजकल के जो ये स्लम वाले बच्चे ये भी बहुत चालाक हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी दिल्ली के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे एक वॉलंटियर ने आटा लेके दे दिया 5 किलो का, ठीक है? Okay. उसने आटा लिया, बच्चे ने आटा लेके, हम लोग इधर उधर चले गए, ठीक? उसने क्या, दुकानदार को वापस आटा 50 रुपए कम में बेच दिया। That's sad. दुकानदार ने पैसे वापस दे दिए। अब मैं हमेशा यही कहता हूँ, कभी भी किसी को देना है सामान काट के दे दो, खोल के दो आटा, चाहे बाद में ऊपर रबड़ लगा दो, नो इश्यूज, बट यू नीड टू कट इट अप एंड तब दो। तो ये सब अभी चंडीगढ़ में तो नहीं आया भाई, ये पहला सीन मैंने दिल्ली में ही देखा था, दिल्ली में ही देखा था। बट अब ये भी देखो ना, गलती किसकी है इसमें? बच्चे की जो गलती है, उसको उसके पेरेंटिंग ऐसी जो भी एक्सरसाइज छोड़ो, बट दुकानदार की भी गलती है। वो क्यों ले रहा है सामान जब उसको पता है ये गया ही दान दक्षिणा के लिए? तो वो चीज है। बट गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेंगे? अगर आपको आपका एनजीओ ओपन करना है जैसे, तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करते हैं उसमें? गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती है। इट्स ऑल अबाउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प यू। ग्रांट्स आती हैं, ग्रांट्स के लिए बहुत से सिस्टम है। 3 साल के बाद ही आप लोगों को आपका 12A मिलता है, विच इज़ अ सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप अपनी डोनेशंस वगैरह ले सकते हो, ठीक है? तो पर्टिकुलरली वही चीज़ें हैं। ग्रांट्स भी आपको 3 साल के बाद ही आती हैं। FCRA अगर आपने अप्लाई करना है 3 साल के बाद, CSR अप्लाई करना है 3 साल के बाद। तो गवर्नमेंट का ऐसा जितना कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बट ठीक है, अगर जैसे मैं NCPCR की बात करूँ, नेशनल चाइल्ड राइट्स ऑफ केयर, तो वो लोग हमारी हेल्प कर देते हैं। जैसे हमारे बच्चों को रिसेंटली जो चंडीगढ़ का CCPCR है, उन्होंने हमारे बच्चों का कुछ इवेंट्स किए थे, जहाँ पे उन्होंने उनकी मदर्स को साड़ीज़ वगैरह दी थी दिवाली में, ठीक है? कुछ हमारे बच्चों को एक स्मॉल टेबल्स आते हैं ना, डेस्क टेबल्स, वो दिए थे बच्चों को, ठीक है? तो धीरे धीरे वो भी वंस इन अ ब्लू मून कर देते हैं अपने आप को अखबारों में दिखाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वही चीज़ है कि हमें काम करना है अपने पर्टिकुलर इम्पैक्ट के लिए। हमें ना किसी सोशल मीडिया के लिए काम करना है, ना हमें अपनी कोई फोटो चाहिए कि हाँ जी टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी फोटो आ जाए। हमें उसके लिए नहीं काम करना। हम अपनी जो एक इनर इम्पैक्ट है हमारा, हम वो उसके लिए काम करते हैं। So Shane, that was such a meaningful chat. बहुत rare conversations होते हैं ऐसे लोगों के साथ, and I really love the work you're doing at your Ashray Foundation. So you so much. कोई message अगर आप audience को देना चाहो? I will always say that in Ashray you can work as a volunteer, right? You can also, there are a lot many other Ashrays in your own city where we are not, but do सेवा, क्योंकि आप किसी की मदद करोगे, in future you can also feel like कि आपकी तभी कोई मदद करेगा, right? So that message I just want to say to youth, or you will anyone who is watching my video, I just want to convey this message. Additionally, I would like to add one thing कि ह्यूमैनिटी से ऊपर कोई सबसे बड़ा रोल नहीं होता। सो जब तक आप ह्यूमन लेवल को नहीं समझोगे, अपने पर्पस को नहीं समझोगे, जस्ट फील लाइक आप तभी गॉड से कनेक्ट हो पाओगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर एपिसोड। आई होप यू एन्जॉयड इट, एंड बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हमें शेन के थ्रू मिली, बहुत सारी नॉलेज मिली, हाउ NGOs वर्क, हाउ दे ऑपरेट, और बहुत सारे ट्रूथ्स के बारे में पता चला। So yeah, that was all about.